Hello and welcome to Animals Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 30th September 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is based on the unmarried woman under the MTP Act. So MTP stands for Medical Termination of Pregnancy. तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे. Now this is not a new act. ये act पुराना है, but there has been a recent judgment based on this act by the Supreme Court, which is a really significant one. तो हम discuss करेंगे इसी के बारे में. Now this article is going to be important from our GS paper 1 Indian society point of view, and it has been taken from the Indian Express. तो देखिए न्यूज़ क्या है. The Supreme Court held that single women with pregnancies between 20 and 24 weeks are entitled to access the same safe and legal abortion care as married women. तो married women जो abortion practice कर सकता है, तो वो अभी that it is also applicable, that can be also allowed to the unmarried women between 20 and 24 weeks pregnancy. तो इसी के बारे में बात करते हैं. अगर ये समझने के लिए we should first know about the MTP Act. चलिए बात करते हैं. So we'll first look at the provisions that are applicable regarding the abortion in India. तो इंडिया की केस में देखिए till 1960s तक abortion was completely illegal. ठीक है. तो any woman who was found to practice or undergo abortion, now they could also face 3 years of imprisonment. ठीक है. 3 years of imprisonment भी मिलेगा प्लस और उनको क्या मिल सकता है, फाइन भी मिल सकता है अंडर सेक्शन 312 ऑफ द आईपीसी. ठीक है. सो अंडर सेक्शन 312 दिस ऑफ द आईपीसी द प्रैक्टिस ऑफ एबॉर्शन वाज कंप्लीटली इलीगल इन इंडिया. बट इसकी वजह से क्या हुआ देखिए, बिकॉज इट वाज इलीगल, एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज स्टिल बीइंग कैरिड आउट, बट मोस्टली एट होम्स हो गया या क्लिनिक्स में हो गया. ठीक है. व्हिच वाज अनसेफ एंड थ्रेटनिंग टू द लाइफ ऑफ वुमेन कंसर्न. Basically, unwanted pregnancies were still being terminated, but not through medical or scientific ways, which was leading to the death of women as well. So the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971 had to be brought about to save or to आप कह सकते हो to prevent the lives of women. ठीक है. So it was introduced to liberalize access to abortion, since the restrictive criminal provisions was leading to women being using unsafe and dangerous methods for termination of pregnancy. ठीक है. And the gestation limit was 20 weeks for abortion. अब देखिए pregnancy जो है, the pregnancies under 20 weeks could only be terminated through this act. ठीक है. फॉर एबॉर्शन कंसल्टेशन विद वन डॉक्टर. अब देखिए अगर मान लीजिए जो प्रेगनेंसी है, इफ इट इज टिल 12 वीक्स, देन एक डॉक्टर का यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ता है. और अगर मान लीजिए 12 वीक्स से 20 वीक्स तक, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 20 वीक्स तक ही यहाँ पे इस एक्ट के दौरान द वुमेन कैन बी अलाउड टू बी टू अंडरगो एबॉर्शन. तो अगर मान लीजिए कि 12 से ज्यादा है और 20 से कम है, उस केस में ना जो वुमेन है उनको लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा 2 डॉक्टर. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर सेफ्टी. ठीक है. अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लाया गया था लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर दिस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट वाज बॉट इन 2021. और इसमें क्या किया, यहाँ पे देखिए जैसे कि जेस्टेशन लिमिट दैट इज 20 वीक्स था, अभी इसी को इंक्रीज करके 24 वीक्स कर दिया गया. मतलब 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन है, इट वॉज अलाउड फॉर दी वुमन. ठीक है. सो फॉर एबॉर्शन कंसल्टेशन विद वन डॉक्टर, अगर मान लीजिए कि 20 वीक्स तक है, ठीक है, इफ द प्रेगनेंसी इज टिल 20 वीक्स, देन ओनली वन डॉक्टर का कंसल्टेशन इज इनफ. बट अगर मान लीजिए 20 वीक्स से ज्यादा है, ठीक है, अगर 20 वीक्स से 24 वीक्स तक है, देन देयर द कंसल्टेशन शुड बी विद 2 डॉक्टर्स. ठीक है, फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन. और ये जो 20 to 24 वीक्स है ना, इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी बताया गया था. बट बिकॉज यहाँ पे देखिए दिस वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बट देयर वर सम कंडीशंस which were laid down in case of this period from 20 weeks to the 24 week period. ठीक है. It leaves the special categories to be defined by the states. We'll look at the categories now. और ये जो act है, it also includes rape, victim and other vulnerable women like differently able women and minors. तो let's see कि क्या क्या conditions में इस period में the pregnancy can be terminated. तो as I was saying about the recent amendment of the year 2021 that has been done in last year. तो last year देखिए जो MTP Act of 1971 है, उसको amend कर दिया गया है. और अभी फिलहाल देखिए कैसा है कि अगर 20 वीक्स तक कोई प्रेग्नेंट है, if the woman is pregnant under 20 weeks, then she has no conditions to undergo, there are no conditions that she has to
fulfill in order to undergo abortion. कोई कंडीशन नहीं है. The simple thing is that you should only consult one single doctor. उसके बाद अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी अगर 20 से लेके 24 वीक्स तक का हुआ ना, तब लेकिन यहाँ पे कंडीशंस आर बीइंग लेड डाउन एंड ऑल्सो यू मस्ट कंसल्ट 2 डॉक्टर्स इन दिस केस. तो देखिए कंडीशंस क्या क्या है. कंडीशंस है दैट इज द वुमन शुड बी अ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट इन केस द वुमन इज अ माइनर. उसके बाद चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस. अभी देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान द वुमन may get उनका जो husband है he may die or she may get a divorce as well. उस केस में भी she can undergo abortion. उसके बाद woman with physical disabilities, then mentally ill woman including mental retardation, the fetal malformation. अब देखिए जो fetal जो यहाँ पे unborn baby है, now the fetal जो malformation है, now that has a substantial risk of being incompatible with life, or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped. तो इस केस में the woman is allowed to undergo abortion. And also women with pregnancy in humanitarian settings or disasters or emergencies may be declared by the government. अगर मान लीजिए कि कहीं पे war like situation है, कहीं पे drought like situations है, flood है या pandemic है, तो उस cases में भी the abortion is allowed for a woman. Now let's see why this has been in the news. Now it is because of a current development. अब क्या हुआ देखिए 25-year-old woman sought the Delhi High Court's permission for termination of pregnancy of 23 weeks and 5 days. तो you understand? तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे कंडीशन आ जाता है. ठीक है, नो कंडीशन कहाँ पे था 20 वीक्स से पहले. अब 20 वीक्स के बाद आई टोल्ड यू कि ये कंडीशनल पीरियड में है. तो इसमें देखिए वो क्या किया था, जो वुमन है 25-year वुमन, शी हैड सीक द हेल्प ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. लेकिन द वुमन यहाँ पे वो बताया कि द वुमन टोल्ड द कोर्ट दैट she wanted to terminate the pregnancy because her partner. अब देखिए बेसिकली ये कहानी है एक लिव इन रिलेशनशिप का, where the woman was staying with a partner, लेकिन after she was pregnant, ठीक है, after she was pregnant क्यों क्या किया था, जो पार्टनर थे, the male partner had refused to marry her. ठीक है, as अभी देखिए because he had refused to marry her, so basically she was kind of fearing stigmatization from the society, ठीक है, as a single or unmarried woman, and this is the reason why she wished to undergo that termination of pregnancy. लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्या किया, they had a look for the case and finally they refused to allow the termination of the pregnancy. उन्होंने अलाउ नहीं किया था. और क्या क्या बताया था, ग्राउंड बताया था कि the woman's pregnancy was into the 20 to 24 weeks. मैंने बताया था कि इस पीरियड जो है ये कंडीशनल पीरियड है and the woman did not lie in any of the 7 categories. तो मैंने आपको जितना भी कैटेगरीज के बारे में बताया उसमें वो लाई नहीं करते. So based on this the दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि we cannot allow you. So अभी देखिए आई टोल्ड यू कि चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस इज वन ऑफ द 7 कंडीशंस, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि दे एक्चुअली ऑब्जर्व दैट द कंडीशन वाज ओनली एप्लीकेबल टू मैरिड वुमेन एंड नॉट फॉर अनमैरिड वुमेन. ठीक है, एंड हेंस शी वाज नॉट अलाउड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. अब देखिए ये जो मैटर था फाइनली ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास. ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या हैज हेल्ड दैट ऑल वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड हो या अनमैरिड हो, दे आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंडर द MTP एक्ट. ठीक है, तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो आप कह सकते हो कि उन्होंने ये भी बताया, ऑल्सो अपॉइंट वन मोर व्यू रिगार्डिंग द केस. आई टोल्ड यू अबॉर्शन इज अलाउड इन केस ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट ओनली. नाउ सुप्रीम कोर्ट व्यू दैट अबॉर्शन इज ऑल्सो अलाउड इन केस ऑफ मैरिटल रेप एज वेल. ठीक है, तो मैरिटल रेप आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के केस में यू शुड नो दैट मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस under the current scenario, but the recent verdict जो है it has turned out to be progressive in nature, especially towards the women empowerment. ठीक है, एक तरीके से उन्होंने मैरिटल रेप के केस में भी अबॉर्शन अलाउ किया है, और दूसरा यहाँ पे मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस कि मैरिड हो या अनमैरिड हो, she will be allowed to undergo undergo abortion under like till 24 weeks of pregnancy under this MTP Act. So it is kind of empowering for the woman. Now let's look at the inferences that we learn from the court judgment. Now this can be important from Indian society point of view. The first one is about the recognition to live in relationship. ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं जजमेंट से आप कह सकते हो कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ना उसको एक रिकॉग्निशन दिया गया है. तो बेंच ने यहां पे ये कहा है कि द लिव इन रिलेशनशिप हैड ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. इसे इलीगल नहीं माना जाता है. एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन सोशल मेन स्ट्रीम हु सी नो रॉन्ग इन एंगेजिंग इन प्री मैरिटल सेक्स. इसका मतलब यह है कि जो लीगल सिस्टम है या जो जुडिशियरी है, इट इज स्लोली मूविंग टू रिकॉग्नाइज द फेनोमेनन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स.
So you can now see how the Indian society is transforming in its nature. तो पहले देखिए कैसा था इंडियन सोसाइटी. इट वाज फर्स्ट इट वाज बेस्ड ऑन जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो फ्रॉम द जॉइंट फैमिली सिस्टम इट इज मूव टू द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, एंड फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली इट इज currently moving on to the live-in relationship where couples staying together without marriage. Now this can be considered as a progressive outlook of the society as well as the Indian judiciary. उसके बाद बताया गया अबाउट द लिबरल व्यू टुवर्ड्स वुमेन राइट्स ऑन देयर ओन बॉडी. अब देखिए दूसरा जो इन्फ्लुएंस है सुप्रीम कोर्ट का लिबरल व्यू ऑन वुमेन. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि काफी एक पुराना मतलब ये जो मुद्दा है ना, दिस एक्चुअली इज अ वेरी ओल्ड इशू. तो यहाँ पे जो मुद्दा है कि यहाँ पे बताया जाता है कि एक वुमन को अपने शरीर का पूरा अधिकार, मतलब उनका जो बॉडी है, सो दस अ वुमन हैज कंप्लीट राइट ओवर हर बॉडी. ठीक है, कि एक वुमेन को अपने शरीर का पूरा अधिकार है या उस हिसाब से फैसले ले सकती है कि नहीं ले सकते है. क्योंकि एबॉर्शन को देखिए मल्टीपल डायमेंशन से देखा जाता है. वन फ्रॉम द राइट ऑफ वुमेन ऑन हर ओन बॉडी, जैसे कि मैंने कहा, एंड द अदर इट इज ऑल्सो व्यूड एज अ मर्डर ऑफ व्हाट, मर्डर ऑफ द फिटस. तो देयर आर कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड हु व्यू इट एज अ मर्डर, एंड इन सच केसेस आप कह सकते हो इन मेनी कंट्रीज एबॉर्शन इज नॉट अलाउड. इनफैक्ट इन केस ऑफ यूएस ऑल्सो, वहां पे भी देखिए जो फेडरल कोर्ट है अभी रिसेंटली उन्होंने क्या अलाउ किया है टू मेक एबॉर्शन, मतलब जो पे जितने सारे स्टेट्स हैं तो स्टेट्स को अलाउ किया है टू मेक एबॉर्शन अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, बिकॉज देयर आल्सो द सोसाइटी व्यूज इट एज अ मर्डर. ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई इंडियन जुडिशियरी ने इस जजमेंट से वुमेन के रिगार्डिंग काफी एक लिबरल एंड प्रोग्रेसिव व्यू इंडिकेट किया है. बिकॉज बाय अलाउइंग वुमेन द राइट टू टर्मिनेट, द कोर्ट हैज आल्सो अलाउड द वुमेन टू प्रैक्टिस हर राइट्स ऑन हर ओन बॉडी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट recent appointment at the union government level. So there has been an appointment for the new Attorney General of India, because the current Attorney General of India, that is KK Venugopal's term, will end on 30th of September. So the new person who will be appointed as the Attorney General of India is R. Venkataramani. Now he will assume the office as the 16th Attorney General on 1st of October 2022. Now he will be appointed for a period of 3 years. Normally 3 years के लिए appoint किया जाता है. The post was initially offered to Mukul Rohatgi को appoint किया गया था, who was the Attorney General before KK Venugopal, but उन्होंने post को reject कर दिया. तो finally the post has been offered to R. Venkataramani. ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल के पोस्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. सो देखिए हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो इन सरल भाषा में अगर मैं आपको कहूं, ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर एट द यूनियन लेवल. ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पार्ट 5 में पाया जाता है, व्हिच डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव. सो अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको मिलेगा, इट मेंशंस दैट ही और शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही एडवाइसेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स. तो कोई भी लीगल मैटर्स होता है, ही इज द फर्स्ट ऑफिसर हु वुड बी कंसल्टेड, एंड हिज जॉब इज टू टेंडर, आप कह सकते हो कि यहाँ पे एडवाइसेस वगैरह देना यहाँ पे काम है, तो प्रोवाइड बेसिकली लीगल एडवाइसेस. तो ही ऑल्सो इज अ प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो कोई भी अगर केस है जहां पे द गवर्नमेंट इज कंसर्न, तो ही विल बी द प्राइमरी लॉयर हु वुड बी who would be representing the union government. The Attorney General, like an Advocate General, देखिए अब ये जो Advocate General है ये स्टेट में पाया जाता है. अभी Advocate General is part of the state executive, which is found in the Article 165 of the Indian Constitution. ठीक है, now he is also not supposed to be a political appointee in spirit, but this is not the case in practice. तो practice में आप देखोगे इनका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करता है under the advice of the union government only. ठीक है, तो देखिए कैसे होता है इनका अपॉइंटमेंट. The President of India appoints a person who is qualified for the post of Supreme Court judge. ठीक है, तो जो भी सारा क्वालिफिकेशन नेसेसरी होता है सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, द सेम कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द अटॉर्नी जनरल एज वेल. सो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट एडवाइस ओनली द अपॉइंटमेंट विल बी मेड. So there are following conditions. अब ये जो conditions है, these are not conditions for the Attorney General, but the conditions for the Supreme Court Judge. तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि he should be a citizen of India. He must have either completed 5 years in the High Court of any Indian state as a judge or 10 years in High Court as a advocate. तो 10 years अगर वो advocate है कोई भी High Court में, या 5 years अगर वो judge है कोई High Court में, then he or she will be eligible for the post of the Supreme Court Judge or the Attorney General. ठीक है, और he may be an eminent jurist too in the eye of the president.
तो देखिए जो टर्म के बारे में ना, तो मैंने बताया था कि उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, बट दिस टर्म हैज नॉट बीन फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो देयर इज नो फिक्स्ड टर्म फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस नो स्पेसिफाइड टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डज नॉट मेंशन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल. बट यहाँ पे जो उनका रिमूवल है उसके बारे में लेकिन एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है. देयर इज नॉर्मली अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. ठीक है. अब क्या कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. या ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. अब देखिए उनका अपॉइंटमेंट जो है वो करता है प्रेसिडेंट, और रिमूवल भी उनको किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली. ही कैन आल्सो क्विट बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन ओनली टू द प्रेसिडेंट. तो इफ इन केस मान लीजिए कि 3 साल से पहले बिफोर हिज टेन्योर ही वांट्स टू रिजाइन, तो उनका जो रेजिग्नेशन है कैन सबमिट टू द प्रेसिडेंट. तो सिंस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कन्वेंशनली ही इज रिमूव्ड व्हेन द काउंसिल इज डिसॉल्व्ड और रिप्लेस्ड. तो देखिए कभी कभी क्या होता है, व्हेन द गवर्नमेंट का जब टर्म खत्म हो जाता है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का टर्म खत्म हो जाता है, कभी जो 5 years है, अगर इफ इट इज लैप्स, उस केस में क्या हो जाता है, जो अटॉर्नी जनरल है ना वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं. वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं बिकॉज ही वाज अपॉइंटेड बाय द पर्टिकुलर गवर्नमेंट. तो हो सकता है ना कि जो नया गवर्नमेंट है, जो नया अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, नाउ दे अपॉइंट समवन न्यू, सम न्यू पर्सन एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. दिस इज व्हाई इन दिस केस ही रिजाइंस. So let's look at the role of the Attorney General of India. So as I told you, he is the legal advisor, he is the chief legal advisor, he is the chief law officer of the country, of the union government. So देखिए Attorney General has some role to play as well. So whichever legal matters are referred to him by the President, the President यहाँ पे जो भी मैटर उनको रेफर करता है, so उनका काम क्या होगा, तो एडवाइस. तो ही बेसिकली लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट ये सब मैटर्स में, और द प्रेसिडेंट कीप्स ऑन रेफरिंग हिम लीगल मैटर्स दैट सूट्स हिज इंटरेस्ट. तो बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट, दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द president, time and again he may take the advice of the attorney general. Apart from what the president refers, he also performs the duties mentioned in the constitution. So देखिए the 3 duties that are assigned to him by the president are, in any legal case where the government of India is related to the attorney general has to appear in the Supreme Court on his behalf. तो कोई भी अगर केस चल रहा है जहां पे गवर्नमेंट इज कंसर्न इन द सुप्रीम कोर्ट, तो अटॉर्नी जनरल हैज टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट. ठीक है. यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? अटॉर्नी जनरल करेगा. सो he has to represent the union government in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 143. अब Article 143 एक important article है of the Constitution which authorizes the president to seek the opinion of the Supreme Court. देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मैटर में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया जाता है by the president. एक्चुअली गवर्नमेंट लेता है एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. तो ये क्या क्या मैटर्स में लेता है एडवाइस? सो ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. तो कोई अगर इंपॉर्टेंट मैटर है उस केस में ले सकता है. और मान लीजिए कि एनी डिस्प्यूट विच इज arisen out of a precondition or of a pre-constitution treaty. तो मान लीजिए constitution पास होने से पहले, इनेक्ट होने से पहले कुछ भी अगर ट्रीटी था, एग्रीमेंट था, तो उसके बेसिस पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. तो उनका ये काम है यहाँ पे, ही हैज टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट. तो ऐसे एडवाइस में क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है? द अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट्स. ही आल्सो अपीयर्स इन द हाई कोर्ट. अगर मान लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट का केस है लेकिन हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस में भी इट हैज द टास्क ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू रिप्रेजेंट द union government at the high court as well. So let's look at some of the important facts about the Office of Attorney General. The first Attorney General of India was M.C. Setalvad, ठीक है, who was appointed on 28 January 1950. तो इंडिया रिपब्लिक होने के बाद ही इनको अपॉइंट किया जाता है, और उनको सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है फॉर 13 years. तो अगर पूछा जाएगा who was the longest serving Attorney General, the answer would be M.C. Setalvad. He was the first one as well. अब यहाँ पे इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द क्लाउड बर्स्ट व्हिच हैज क्रिएटेड हैवॉक इन यांगते. ठीक है. अब ये जो यांगते है, इट इज द सर्कल ऑफ क्रा दादी. तो क्रा दादी डिस्ट्रिक्ट में यांगते में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जहां पे एटलीस्ट 28 हाउसेस वर डैमेज सिवियरली इन द क्लाउड बर्स्ट दैट ऑकर्ड इन दिस यांगते सर्कल. तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट. इससे हम बात करेंगे अबाउट क्लाउड बर्स्ट व्हिच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर ऑन जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू एंड जीएस पेपर टू डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम. तो देखिए क्या है करंट कंटेक्स्ट. सो एटलीस्ट 28 हाउसेस वर सिवियर डैमेज इन अ क्लाउड बर्स्ट दैट ऑकर्ड इन यांगते सर्कल. तो यहाँ पे क्या क्या विलेजेस है, ये जो यांगते सर्कल है इसमें आपको विलेजेस मिलेगा जैसे कि निरिंगा, यिबुम, यांगते, चोबा एंड अ फ्यू अदर वेर अफेक्टेड. तो ये सारा जो विलेजेस है, एंड पाकपू एंड पाशो जो ये स्ट्रीम्स है, नाउ देयर इन स्पेट. स्पेट का मीनिंग होता है सदर्न फ्लो इन अ रिवर. तो यहाँ पे जब ये रिवर का जो पानी बढ़ जाता है, तो इसी केस से कभी कभी यहाँ पे क्या हो जाता है, आसपास के में फ्लडिंग कॉज होता है. ठीक है. सो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्म दैट नो ह्यूमन कैजुअलिटी हैज बीन ऑकर्ड टिल नाउ, बट द हॉर्टिकल्चर एंड द एग्रीकल्चर क्रॉप्स along with domestic animals were washed away. Now this has been
आप कह सकते हो दिस हैज बीन डिसअपॉइंटिंग फॉर द लोकल पॉपुलेशन हु वर सोर्सिंग their livelihood from agriculture. So the administration informed also that villagers had already moved. तो ये देखिए उनको पहले रेस्क्यू किया गया था, तो इसलिए there has been no casualties. The district administration will assess the damages. Let's see what is a cloudburst. So cloudbursts are sudden, violent and voluminous amounts of rain in a short duration that is local in nature. ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यू नो हाउ दिस क्लाउड इज फॉर्म. तो क्लाउड इज बेसिकली फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. तो कभी अगर मान लीजिए कि क्लाउड फॉर्मेशन में अगर ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, इफ मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उस केस में जो क्लाउड होगा द क्लाउड विल ग्रो इन साइज. ठीक है, तो इसी केस से व्हेन द क्लाउड विल ग्रो इन साइज अप टू अ लेवल, तो उस केस में क्या हो जाता है, कभी कभी सडन, वायलेंट एंड वॉल्यूमिनस रेनफॉल कैन ऑल्सो बी कॉज्ड. ठीक है, सो क्लाउड बर्स्ट जो है इसे डिफाइन किया गया है बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सो अकॉर्डिंग टू द IMD दैट इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. सो इट इज अ प्रिंसिपल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड सेस्मोलॉजी. तो इनके अकॉर्डिंग क्या 100 मिलीमीटर ऑफ रेन इज इन एन आवर, एक घंटे में अगर 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर. तो देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि द एरिया शुड बी स्मॉल. ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए बहुत लार्ज एरिया, सो दैट वुड नॉट बी टर्म्ड एज अ क्लाउड बर्स्ट. तो एरिया शुड बी स्मॉल, दैट इज from 20 to 30 square kilometer. Now only then in case it would be called as a cloud burst. So cloud burst is defined as a geohydrological hazard due to their aggressive nature and the scale of destruction. अब देखिए क्योंकि स्मॉल एरिया है तो बहुत ज्यादा वाटर आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन है, तो इसी से क्या हो जाता है, बहुत सारा डैमेज भी कॉज होता है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. दिस इज द रीजन व्हाई दे आर टर्म्ड एज हैजर्डस इन नेचर. इन इंडिया द क्लाउड बर्स्ट ऑकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. तो देखिए साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में आपको पता होना चाहिए द 70% ऑफ द इंडियन रेनफॉल इट कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ओनली, दैट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जून. तो जून से लेकर सितंबर तक, होपफुली अक्टूबर के बाद में तो ये सब जो भी अभी हो रहा है जैसे कि लैंडस्लाइड, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट, उसके बाद फ्लडिंग वगैरह अभी तो नहीं होना चाहिए फ्रॉम अक्टूबर, बट पता नहीं क्या हो जाए, बिकॉज अभी जो भी टाइम है इट इज अ टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एट ऑल क्या हो जाए. बट सितंबर में भी बिकॉज ऑफ द रेनफॉल this cloud burst has occurred. So cloud burst is difficult to predict since it occurs suddenly with a catastrophic force and thereby inflicts enormous losses to inundation and erosion. ठीक है, तो यहाँ पे वो flooding cause करता है, erosion cause करता है, तो बहुत ही एक small period of time में, एक short span of time में एक small area को बहुत जल्दी affect कर देता है. ठीक है, सो क्लाउड बर्ड्स आप देखोगे द क्लाउड बर्ड्स आर वेरी फ्रीक्वेंट इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मेघालय में, देन अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे हिली टेरिस में काफ़ी ये कॉमन है. अब देखिए कॉमन क्यों है, आई टेल यू शॉर्टली. रेनफॉल जो है ना वो 3 तरीके का होता है. एक होता है आपका कन्वेंशनल रेनफॉल जो कि नॉर्मल रेनफॉल है, उसके बाद होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड फाइनली आपका साइक्लोनिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, ओरोग्राफी इज रिलेटेड टू माउंटेन्स. तो माउंटेन्स में क्या होता है, जिस साइड से विंड आता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस साइड से विंड आता है, तो विंड क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द माउंटेन द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो जहां पे जाके वो कंडेंस होते हैं और क्लाउड फॉर्म करते हैं. सो दिस क्लाउड बर्स्ट जो है ना वो ऑकर्स मोस्टली ओवर द rugged terrains, over the Himalayas, the Western Ghats and the northeastern hill states of India due to what? Due to this orographic rainfall. ठीक है, तो orographic lifting of the air की वजह से यहाँ पे too much of moisture क्या होता है, too much of moisture is lifted to the atmosphere and because of this क्या होता है, एक typical type of cloud form होता है और इस cloud को कहा जाता है cumulonimbus cloud. Now cumulonimbus cloud are the most dense type of cloud जहाँ पे huge amount of moisture रहता है. ठीक है, सो दिस ये जो अपलिफ्टिंग हो रहा है, दिस अपलिफ्टिंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस cumulonimbus cloud now taking in huge volumes of moisture from the atmosphere. ठीक है, द हैवी रेनफॉल ऑन द स्टीप स्लोप्स ट्रिगर यहाँ पे जब भी अभी जैसे ही ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, अभी क्लाउड फॉर्म करेगा और फाइनली बारिश कॉज करेगा. अब ये जो हैवी रेनफॉल है बिकॉज ऑफ द cumulonimbus cloud, नाउ दिस हैवी रेनफॉल ऑन द स्टीप स्लोप्स ट्रिगर लैंडस्लाइड होता है, इससे डेब्री फ्लो होता है एंड फ्लैश फ्लड्स होता है. तो यू कैन से दिस ये जो क्लाउड बर्स्ट है ना, क्लाउड बर्स्ट वुड बी लीडिंग टू अ सीवियर काइंड ऑफ फिनोमेना, लाइक यहाँ पे लैंडस्लाइड भी कॉज हो सकता है, देन फ्लैश फ्लड वगैरह भी होता है बिकॉज इट ऑकर्स इन अ स्मॉल एरिया. ठीक है, and especially this northeast region जो है, it is highly vulnerable due to its hilly terrain. There are certain points that I have given you about cloudburst. You can use answers. The next article is about the Zero Literary Festival. Now this has been in the news that it is the 3rd edition of the Zero Literary Festival which has commenced at the St. Claret College Zero Auditorium here on Thursday. Okay? So this can be important for our prelims, not for our mains, but it has been taken from the Arunachal Times. So the 3rd edition, as I was saying, of the Zero Literary Festival organized by, देखिए इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है. एक तो ये जहाँ पे हो रहा है, that is the St. Claret College. तो ये St. Claret College and the Phoenix Rising
and in partnership with the Tribal Affairs Directorate, the Lower Subansiri District Administration, then Northfield Winery and Arunachal Organic. Now these are the bodies and organizations which combinedly or jointly organizes this Zero Literary Festival. Now this took place recently at the St. Claret College Zero का जो ये auditorium है यहाँ पे it was held. So it was attended by a number of authors, writers, poets and journalists from an outside state as well, such as Mamang Dae, the very famous from Arunachal Pradesh only, then Madhu Raghavendra, then Karma Paljor, Ranju Dodum, Ponung Eding Angu, Sading Nagvi and Subit Abad. This all the names are not important, but we'll see some of the context. तो देखिए इस बार का जो थीम है ना, इस बार का थीम कभी आपको पुलिस में पूछा जा सकता है. सो द थीम ऑफ दिस ईयर इज सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी फॉर ऑल. ठीक है. So the festival emphasizes on the importance of reading, thinking, creating and sharing through discussions. So Mamang Dae, the very popular Mamang Dae, has spoke on this festival about the power of telling your own story. ठीक है. तो उन्होंने बताया कि words are travelers, words can foresee future. She said, adding that there is history in every word penned down by the writers, may it be beginner or prominent writers. तो writer मान लीजिए अगर नया भी हो या old हो, अगर prominent हो, अगर मान लीजिए उनके जैसा legend भी हो, तभी भी यहाँ पे every word has got a history of its own. ठीक है. तो उन्होंने ये बात बताया है. So these were the questions that I had given in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the question are, तो पहला जो आर्टिकल है ये डार्ट मिशन के बारे में है जो कि नासा का मिशन है. नासा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए. Now which Indian states share boundaries with Nepal? Nepal, you should know, it shares boundary with Uttarakhand, Uttar Pradesh, Sikkim, Bihar and West Bengal. तो यहाँ पे it will be all of the above. Who was the first chief of defense staff in India? It was General Bipin Rawat. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining and we'll meet the next one. Bye bye and take care.